मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी एंड ये है मेरी यूट्यूब चैनल। ये आज का मेरा वीलॉग मेरे उन हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से है, वो मेरे जो हम उम्र हैं, जो बंटवारे पे ज़िंदा थे और वो लकी लोग हैं। मैं अपने मुतल्लिक भी खुदा का जितना शुक्र करूँगा मैं उन सब लोगों के लिए, मेरे दोस्त बेस्ट दोस्तों में से दोस्त है आशा, और जो उसके खामंद हैं जो ओम, एंड उनके जो भतीजे हैं वो न्यू दिल्ली में रहते हैं। और ये इंतहाई जो पैलेस उनमें ऑस्ट्रेलिया में जो है एक हाई दोनों, एक आई का प्रोफेसर और एक गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर, वर्ल्ड के टॉप स्पेशलिस्ट हैं, और दोनों उनकी बेटी हैं और दोनों ही प्रोफेसर हैं, दोनों ही एक लॉ और एक रेडियोलॉजी के अंदर। सो इट्स ए रियली नाइस एंड प्राउड टू सी देम दोज, and this gives such a, that's the thing which I want, that now you got an opportunity to get rid of from a dictator. And remember that he has his roots deep into the whole of the Indian Election Commission, in the Supreme Council and Supreme Court, higher court, judiciary, all the vagabonds, all the killers, all the kinds of people he gathered around him to become a dictator and a one-man show. Now if you now go with them and make a government and let him in the third time, remember that all he is going to do is to find some sort of an excuse, because all those bureaucrats, all that police, all that army, all that people who worked with him and killed for him, all that one who instigated that he should build a Ram Mandir and lie that there was a Ram Mandir who was born here, nothing was found. And there is a documented thing that how in the middle of the night some sadhus kept pieces of a small statue and said this is the remains of Ram. And now you see how you have lost there, how your face has been blackened, but nothing is going to affect you. And I think it's the time for all the minorities, especially Sikhs and Dalits and the Muslims and Christians, they join hands and support Congress. And I request both the, at the moment who want to align with this man, that they don't, because the old habits die hard, and there is no way that Modi is ever going to give you the ministries where you have any power or where you have anything to do with the government. He is a dictator and you cannot take that with him. He is a worker of the RSS and you cannot kill his ideology. He is an extremist and he hates Muslims, he hates Christians, and he wants Hindu of his type. He doesn't want a Hindu like you, tolerant and who tolerate other people and respect, and you get respect from the others. So you can see for yourself that if you lost this opportunity, it is like now or never. So I request both the parties who won over 50 seats, and they can join at the moment the alliance in which just happen to be that the Congress is leading with over 90 seats, that this time you will have a change. And that change with, I think, with the coalition and the wise people from another 2 or 3 parties, already it's an alliance of some good people, and think you will have good time. You will have good terms. You will be able to concentrate and not have enemies on the Chinese border or on Pakistani border or on Afghan border, or you won't be sending and having a friendship miles and miles away with the baby killer, with the genocide under Netanyahu. What business you have? And what will you get from him? I mean, the animosity of all the Arabs, where most of your people go there and earn dollars, and they are respected, and you even have been there and awarded. And I'm saying it's not an award to Modi, it is an award to India. So you deserve it. Whether it is Rahul, or whether one of the others who join him are deputy prime ministers or minister, and I'm sure that Rahul Gandhi will sacrifice for a change, and you will be able to make difference for the 800,000 people who are living below the poverty line in India, jobless, and they have nothing to do. So what do you care about 0 to 5% or 1% people who are trillionaire and who have all the contracts? Whether this is why he says he doesn't want to give you railways or transport, because that's where the money is, whether the kickbacks are. In the list of corrupt people, Modi's term is about 4th in the whole world. So please,
is a request to all of the people now that you have a time and you have a limited hours, 48 hours, before you can get rid of him. And you can get rid of not only with this another killer, Amit Shah, and these butcher of Gujarat. They are never going to change. Like snake, snake will bite you. If you kill the male snake, the female snake will follow you till she bites you and kills you. So Modi's party is party of snakes. And so if you want to get rid of this snake, this is the only time. So take advantage of this and do it. That's all I can do is to appeal to you. क्या ताल्लुक है नाज़रीन, भारत के इलेक्शन की बात करें तो पूरे इंटरनेट पे एक सेंसेशन छाई हुई है। ध्रुव राठी, ये भारतीय यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी कह लें, जो भी आप नाम दे देंगे, डिजिटल जर्नलिस्ट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें। इनका पहला तारुफ ऐसे हुआ कि इनकी कोई एक वीडियो मेरे सामने आई थी जब इन्होंने भारत ने जब कश्मीर में शब खून मारा था अगस्त 2019 में, तो इन्होंने उसका भरपूर साथ दिया था नरेंद्र मोदी का। तो वो दिन और उसके बाद मैंने कभी भी इनको नहीं सुना, देखा नहीं। लेकिन फिर अचानक इस साल ही मोदी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम करना शुरू किया, यानी लोगों को हकायक बताना शुरू किए, सच दिखाना शुरू किया। मोदी ने कहाँ का झूठ बोला, क्या क्या गलत काम मोदी कर रहा है, उससे भारतीय माशरे को क्या नुकसान हो रहा है, और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जब इन्होंने मोदी को बेनकाब करना शुरू किया तो एक दो बार वीडियो नज़र से गुजरी। अब आज इनको क्रेडिट दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीत सका, बल्कि वो तो 400 सीटों की बात कर रहा था, उसको बमुश्किल 290 के अराउंड सीटें मिली हैं। 272 चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी अपने इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ा गेन किया है, 50 या 60 सीटें अगर नरेंद्र मोदी की कम हो गई हैं तो दूसरी पार्टियों ने ज़रा गेन किया है। बड़ी ही अजीब सिचुएशन है मोदी के लिए, लेकिन भारतीय इलेक्शन पे बात नहीं करना चाहता। हालांकि मैं करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। ये कैसा अजीब इलेक्शन है, ना आपको फौजी नजर आए बंदूकें उठाए पोलिंग स्टेशन है वहां दाखिल होते हुए, ना आरओ के दफातर में दाखिल हो रहे हैं फौजी, आईएसआई के राव वाले भी कर सकते हैं ये काम, सीबीआई वाले भी कर सकते हैं, और भी उनकी एजेंसियां। कोई नजर नहीं आया किसी को, कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा कि इलेक्शन के नताइज रुक गए, आरटीएस बंद हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, फ़ोन नहीं चल रहा। ये कैसे इलेक्शन है? ये भारत कैसा मुल्क है यार, इसको पता ही नहीं है इलेक्शन कैसे करवाने। हमसे सीखे। कोई सिकंदर सुल्तान राजा वहां पे 3 घंटे के लिए आईएसआई के दफ्तर मुबैना तौर पे नहीं जाता रात को, जिसके बाद नताइज रोक दिए जाते हैं। कहा जाता है कि मीडिया सारा ही झूठ बोल रहा है। ये भी दुनिया की तारीख में क्यों हुआ होगा कि हमारे इलेक्शन की रात को कहा जाता है जी कि रात 12 बजे तक जो मीडिया ने नताइज दिए वो सबकी गलत है, मतलब सबकी रिपोर्टर पागल हो गए थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता यार, ये अजीब बड़ा मुल्क है। फिर मेरे पाकिस्तानियों, ध्रुव राठी की हम तारीफ तो बड़ी कर रहे हैं कि उसने बड़ा मोदी को टक्कर दी, बड़ी बातें की। इन क्या आपको पता है कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो इस कुर्सी पे बैठा होता? ये वो जादुई कुर्सी है जिस पर इसने बैठा होना था, और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और तौबा करनी थी। और अगर ये मुल्क से बाहर होता तो इसके माँ बाप में से किसी को उठा लेते, इसकी बहन में से किसी को उठा लेते, इसके भाइयों में से किसी को उठा लेते, इसके रिश्तेदारों को उठा लेते और इससे तौबा करवाते, इसका अकाउंट डिलीट करवाते। ये भारत कैसा मुल्क है यार, इनको समझ ही नहीं है। ये इंतहा पसंद मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। इनको पता ही नहीं है लोगों से डील कैसे करना है। सोशल मीडिया तो दहशतगर्द है, और भाई इतने बड़े दहशतगर्द को मोदी ने कैसे आज़ाद छोड़ी रखा? इसके खानदान को नहीं पकड़ा, इसके किसी जानने वाले को नहीं पकड़ा, इसके किसी दोस्त को नहीं पकड़ा, नंगा नहीं किया, ईंटें नहीं लटकाई, उल्टा नहीं लटकाया, मारा नहीं। ये कैसा मुल्क है भाई? हमसे इन्होंने कुछ सीखा नहीं इतने अरसे से। हम होते तो इसको अब तक कीनिया में होता, जर्मनी में होता, बरतानिया में होता, अमेरिका में होता, कनाडा में होता, हम इसको अब तक मार चुके होते। किसी नहर के पास इसकी लाश पड़ी होती पाकिस्तानी होते तो। ये कैसा मुल्क है यार कि ये अपने सबसे ताकतवर हुक्मरान के मुकाबले में बोलता रहा, जिसके इंतहा पसंद फॉलोअर्स हैं, और इसको किसी ने ज़बरदस्ती चुप नहीं करवाया। किसी ने यूट्यूब को दरख्वास्तें नहीं दी कि इसका चैनल बंद कर दो और यूट्यूब ने बंद कर दिया हो। किसी ने इसको डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहा। और एक पाकिस्तान में नेतन्याहू के पैरोकार हैं, वो सोशल मीडिया को दहशतगर्द करार देते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा मकसद सिर्फ आपको यह बताना है कि यह सोशल मीडिया की ताकत है जिसने नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को भी इतना बड़ा स्कैर दिया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी कि इमेजिन करें, नरेंद्र मोदी 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, तीसरी बार सब कह रहे थे कि कोई इसको तो मुकाबला ही कोई नहीं है किसी से,
ऐसे मैंने बाय द वे आज से साल डेढ़ पहले बताना शुरू कर दिया था कि मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। ये भी एक आखिरी चांस है इनके पास एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने का। इसके बाद मोदी विल बी फिनिश्ड और बीजेपी उसके बाद बड़े अरसे इक़्तिदार में नहीं आएगी, क्योंकि भारत बहुत दूसरी तरफ अब जाना शुरू हो गया। इंतहा पसंदी वहाँ ख़त्म हो रही है, भारत टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, मिलें लग रही हैं, कारोबार नए शुरू हो रहे हैं। तो भारत तो बहुत ऊपर जा रहा है और हम माशाल्लाह से इलेक्शन फिक्स कर रहे हैं। कोई फॉर्म 47 का रोला नहीं हो रहा भारत में। यार हमसे सीख लो कुछ भाई। तो चलें, ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए सानवी हैसियत रखती हैं। हमने तो लंदन प्लान का देखना है कि उसका क्या असर हो गया है। जब मोदी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही, तो मोदी और लंदन प्लान का क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, लंदन प्लान जब बना, मैं लंदन प्लान अव्वल की बात कर रहा हूँ, दोयम की नहीं, जिसके बाद दूसरी तकर्री हुई थी। तो उस टाइम कुछ शराइत अमेरिका ने रखी थी सपोर्ट करने के लिए कि हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को निकालो। उसमें जो पहली शर्त रखी गई थी वो ये थी कि भारत के साथ आपने ताल्लुकात ठीक करने हैं और आपने कश्मीर को भूल जाना है। अब हम कश्मीर को तो भूल गए हैं, हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है, ठीक है, ये हमने अमेरिका की डिमांड मान ली है। लेकिन भारत से दोस्ती वाली जो कहानी है वो हम तो तैयार बैठे हैं। अब नरेंद्र मोदी जब मुश्किल से 10-15 सीटों पे बैठा होगा उसकी अक्सरियत पे, वो कैसे इन हालात में पाकिस्तान से दोस्ती करेगा जब ये उसका सारा वोटर इंतहा पसंद है। एनलाइटेंड हिंदुस्तानी जो है वो मोदी के वोटर नहीं है, मोदी का वोटर इंतहा पसंद है, शिद्दत पसंद है। अगर मोदी पहले ही कमजोर हुआ पड़ा होगा तो वो कैसे इलेक्शन जीतते ही आके कहेगा ठीक है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप आ जाएं, यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं, ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं। क्या उसका वोटर ये तस्लीम करेगा? और क्या मोदी जो कमजोर पोजीशन में अगर हुकूमत वो बनाता है अभी, तो क्या मोदी एक कमजोर पोजीशन में पाकिस्तान का बोझ उठा सकेगा दोस्ती करने का? भाई हम तो दोस्ती के लिए मरे जा रहे हैं, अब मोदी नहीं कर सकेगा आपसे दोस्ती। ये लंदन प्लान की नाकामी की शुरुआत है। दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ दुनिया की सबसे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट बरूएकार आ रही है, लेकिन अब भी वो डरे हुए हैं कि उसको इतने केसेस में कन्विक्ट कर दिया गया है, इसके बावजूद वो जीत सकता है। अब तक डरे में। हालांकि बरतानिया और अमेरिका ऐसे माशरे हैं कि अगर कोई The push and pull of collision politics is back on the national stage. The JDU chief Nitish Kumar and TDP boss N. Chandrababu Naidu has placed their list of demands before the National Democratic Alliance. The two leaders, who are the master of art of collision, are reportedly trying to dictate terms after NDA declared Narendra Modi as the alliance leader. Some reports claim that Nitish has asked Narendra Modi to review Agniveer scheme, which many claim was one of the reasons behind the shock verdict for BJP. He has, however, backed Uniform Civil Code and One Nation, One Polls. Here is what we know about the demand of various NDA members. According to sources, the TDP has demanded 8 ministerial berths in the third Modi cabinet. The TDP wants Road Transport Ministry, Agriculture, Rural Development, IT and Communications Ministry, Health, Education, Housing and Urban Development, and a Minister of State for Finance. Additionally, the TDP has demanded the post of the Speaker of the Lok Sabha. This is not all. Chandrababu Naidu has also demanded a special economic package for Andhra Pradesh and funds for the development of Amravati as state's capital. Meanwhile, JDU Supremo Nitish Kumar has demanded at least 3 ministerial berths. JDU wants railways, agriculture and rural development ministries. Moreover, the JDU has also demanded that the NDA government should have a common minimum program. The Janata Dal United hinted that it also wants a nationwide caste census and a special status for Bihar. But it also clarified that the support for NDA is unconditional and these wishes are not conditions for joining the next NDA government. Shiv Sena and LJP Ram Vilas also wants cabinet berths. It is understood that the Shiv Sena has laid claim to at least 3 cabinet berths
and also sought 2 ministers of state. The LJP Ramvilas of Chirag Paswan has also demanded 1 cabinet berth. It is understood that the ministry sought by the party could be food and public distribution. जिस तरीके से और ये बात Chirag's कोई father, नकार late Ramvilas Paswan, held FPS portfolio in the first and second Modi को मंत्री बनाने वाले हैं. అంటే సన్నీ లియోని నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోడీ కేబినెట్ లో మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకు మంత్రిగా చేస్తున్నారని ధ్రువ రాఠీ చెప్పిండని చెప్పారు. वाह क्या प्लान बनाया है. यानी कि फेक न्यूज फैलाओ कि ध्रुव राठी ने फेक न्यूज फैलाई है. दोस्तों मैं अक्सर बात करता हूं अपने वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की. इन लोगों ने वहां भी कसर नहीं छोड़ी. डीप फेक का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ एक झूठी खबर फैलाने के लिए. किसी ने ये झूठी ऑडियो क्लिप डाली जिसमें मेरी आवाज को इमिटेट करने की कोशिश करी गई है. ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कि मैं फोन कॉल पर किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा था और पैसे मांग रहा था. डोंट वरी, आई एम विद यू. आप चिंता न करो. आई एम वार्निंग यू, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे. तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलता है. हाँ मुझे तो यूके से आता है ना. मेरा चैनल क्लियर है. He is no need to defend them on this. No need. I'll call you. मैं बात करता हूँ आपसे. देखो किस हद तक ये चले गए मुझे बदनाम करने के लिए. ऊपर से जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहाँ पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुली बोलकर. कोई झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं. हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है. कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों. कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है. जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है. व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं ओपनली. दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है. बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो. ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है. इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये. एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी. खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था. ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे. इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. इसका क्या तुक बना? मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है? तो ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका. मैं भी कह देता हूं जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. ऐसी हरकत इनके गोदी यूट्यूबर्स भी करते हैं. कुछ भी बेबुनियाद आरोप ये मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है. भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, अब मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो. इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप. मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं. मशहूर लेखक सहादत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है. ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं. ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कुछ हर्ट फील होता हो, क्योंकि अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन दुख जरूर होता है. दुख होता है कि ये कैसा कल्चर बना दिया है इन्होंने देश में. कहां तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि विचारों को हर दिशा से आने दो, और आज 2024 में ये ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इनसे अलग हो जाए तो आप इनके लिए जानी दुश्मन की तरह बन जाते हो. एक डेस्परेशन है इनकी तरफ से कि अगर किसी का विचार इनसे नहीं मिलता हो तो उसे किसी ना किसी तरीके से देशद्रोही दिखा दो, फॉरेन फंडेड दिखा दो. कई बारी तो मुझे बड़ा अनरियल सा लगता है ये सब देखकर. देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो. लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों? आपकी तरफ से इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला कि इनकी कोई भी झूठ की दुकान टिक नहीं पाई. हर रोज के मुझे हजारों मैसेजेस मिले, ईमेल्स मिली. किसी ने आप में से मेरी पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई गाना ही बना डाला. लाखों लोगों का लव और रिस्पेक्ट मिला. लोगों ने एडिट्स बनाए, किसी ने मुझे डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा, किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा. इसलिए आपके इन लाखों कॉम्प्लीमेंट्स के बीच गोदी इकोसिस्टम के सभी अटैक्स फेल रहे हैं. चरण वंदना करने वाले लोग डेली बेसिस पर अपनी बदतमीजी का सबूत देते रहे और हम देश के मुद्दों पर बात करते रहे.
बेरोजगारी पर वीडियोस बनाए, किसानों के मुद्दे उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बात करी, फार्मा स्कैम की बात करी, खाने में डलने वाले मसालों की बात करी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चारों डिपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसी तरह से हमारा मिशन 100 करोड़ चलता रहा। ये मेरे अकेले का मिशन नहीं था, ये हम सब का मिशन था। हर एक उस भारतीय का मिशन है जो देश की फिक्र करता है, जो देश को बेहतर बनते हुए देखना चाहता है, जो आम लोगों के बेहतर भविष्य की फिक्र करता है। और कल चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी हमसे ये एहसास नहीं छीन सकता। इस एहसास को इस वीडियो में सहेजने की मुझे जरूरत महसूस हुई। लगा कि इसे डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जब भी दुनिया में किसी देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो और देश के लोगों को जब भी हिम्मत चाहिए हो, तो हमारी ये दास्ता उनके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे दूसरों के लिए ही क्यों, ये दास्ता हमारे लिए भी तो एक प्रेरणा है। ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्या पता कल के चुनाव के नतीजों में बीजेपी वाकई 350-400 सीट जीत जाए और प्रधानमंत्री देश को तानाशाही की दिशा में ही आगे बढ़ाते रहे। तब क्या करेंगे? प्रेरणा लेंगे अभी तक के इस सफर से, इस वीडियो से, और कोशिश को जारी रखेंगे। और अगर कल इंडिया अलायंस की भी जीत हुई, तब भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इतना तो है कि देश में ध्रुवीकरण कम होगा, तानाशाही के काले बादल छट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। किसी ने एक बार कॉमेंट्स में पूछा था कि अगर कल को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या मैं तब भी आवाज उठाऊंगा? ऑब्वियसली उठाऊंगा, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता, तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है। और जब सब ठीक भी हो जाए, तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है। यही लोकतंत्र है। और वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है। कहाँ हम सपने देखते हैं देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, लेकिन पिछले 10 सालों में हालत ये हो गई कि कुछ लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन करने लगे। राजनीति में ईमानदार और शरीफ नेताओं की कमी है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी का इशू है, पोल्यूशन एक मेजर समस्या है। सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते रहना होगा, जो भी सरकार हो उनसे जवाब मांगते रहना होगा। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं, एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं जहां पर हर इंसान साफ हवा में सांस ले, साफ पानी पिए, हर इंसान को ऊपर उठने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, किसी की आवाज को नीचे दबाया ना जाए। एक ऐसी दुनिया जो हर इंसान, हर पशु पक्षी के लिए जीने लायक हो। क्या धरती पर एक स्वर्ग बनाना मुमकिन है? मुझे नहीं पता, मैं बस सही कर्म करने पर ध्यान दूंगा, फल पर ऑब्सेस्ड नहीं होऊंगा। ये दौर देश की लड़कियों और औरतों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश को बचाने के इस संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। पूनम अग्रवाल, मनीषा पांडे, निधि सुरेश, आरफा खानम शेरवानी, फे डिसूजा, मीना कोटवाल, सर्फप्रिय सांगवान, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा खान, मीरा देवी, कुमकुम बिनवाल और भी जाने कितनी सारी जर्नलिस्ट, केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड लोकल रिपोर्टर्स भी। पत्रकारों के अलावा वुमेन इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक अहम रोल निभाया। डॉक्टर मेडूसा, रैंटिंग गोला, कबीरान, गरिमा, नेहा सिंह राठौड़, किसी ने जोशीले अंदाज में अपनी बात रखी, तो किसी ने सैटायर में, तो किसी ने गाकर। जो ऑन ग्राउंड पब्लिक रिएक्शन वीडियोस होते हैं, उनमें कितनी ही औरतें बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हुई दिखाई दी। पापा में नौकरी क्यों नहीं देते? अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं, मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जब कोई महिला इस तरह से देश की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है, उसके पर्सनल राइट्स ऑटोमेटिकली उसे मिल जाते हैं। वो किसी से फ्रीडम मांगती नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा दी गई फ्रीडम को खुद से रिक्लेम कर लेती है। जय भीम फिल्म का ये जो आखिरी सीन है, इसी तरीके से देश की हर एक लड़की और औरत को अखबार उठा लेना चाहिए। बहुत हो चुका ये हनी सिंह टाइप के गानों से इन्फ्लुएंस होकर खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, एक ऐसे इंसान की तरह देखना जो केवल सजना सवरना जानता हो। बहुत हो चुका ये शॉपिंग लवर वाला जो लेबल है, कोई गर्व की बात नहीं है इसमें। बहुत हो चुके ये स्टीरियोटाइप्स की लड़कियां पॉलिटिक्स को नहीं समझती। अब बाहर निकलिए इस कोकून से। याद रखिए कि इसी दुनिया में एक डाफने गैलिजिया थी, जिन्होंने पनामा पेपर्स के जरिए पूरी दुनिया के करप्ट लोगों को एक्सपोज कर दिया और अपनी पत्रकारिता करते हुए शहीद हो गई। लेकिन बात यहाँ सिर्फ औरतों की नहीं है। रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे कई पत्रकारों ने संघर्ष किया सच दिखाने का। अर्पित शर्मा और मुकेश मोहन जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिम्मत दिखाई आवाज उठाने की। लेकिन आप फिर भी शायद सोचो कि आप अकेले क्या कर सकते हो। कई बार बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग हेल्पलेसनेस जताते हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कईयों ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। मैं यहाँ पर कहूंगा कि देश के लिए कुछ करने की बजाय
सभी कुछ देश के लिए क्यों नहीं किया जाए। पहली बात, अपनी कॉम्युनल, कास्टिस्ट, मिसोजिनिस्ट, क्लासिस्ट सोच का इलाज करें अगर आपकी वैसी सोच है तो। फिर कई वीडियोस में मैंने बताया है कि हमें वोकल फॉर लोकल को एक जुमले की जगह हकीकत बनाना होगा। कोशिश करें खाने का सामान जितना सीधा किसान से खरीदा जा सके उतना ही बेहतर है। इसी तरीके से आप कपड़ों को या घर के डेकोरेशन आइटम्स को जितना लोकली खरीदे उतना बेहतर है। इससे जो अमीर गरीब के बीच वेल्थ इनइक्वालिटी है वो कम होगी। अपने घर से जब निकले तो हमेशा एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर चले ताकि प्लास्टिक यूजेज को कम कर सके, गंदगी ना फैलाएं। अपने आसपास पौधे और पेड़ लगाएं, उनका रख रखाव करें। हर एक चुनाव में वोट करें। इस बार की चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं देखी गई। बहुत सी जगहों पर पोलिंग ऑफिसर्स रात को 2-3 बजे तक अपने घर पहुंच पाए। क्या ये सब एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता था? जरूर हो सकता था। इस इनएफिशिएंसी के अलावा ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे गए जहां पर इलेक्शंस फ्री और फेयर ना होने के सवाल उठाए गए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश के संबल में, सूरत और इंदौर जैसी कई जगहों पर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करी गई। एक के बाद एक भाषण में इवन प्रधानमंत्री ने बार बार धर्म के नाम पर हेट स्पीच फैलाई अपने भाषणों में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया। इस चुनावी प्रक्रिया को फ्री और फेयर करने के लिए जो आवाज उठाने की जरूरत है, जिस आंदोलन की जरूरत है, वो हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हर पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए तभी इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ उन्हीं प्रोफेशंस में सीमित नहीं है, यह बात हर प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी आप काम करते हो उसे अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। हर एक IAS ऑफिसर रौब झाड़ने के बजाय खुद को जन सेवक की तरह देखें, ईमानदारी से जनता के लिए काम करें। पुलिस वाले क्राइम को रोकने के लिए कमिटेड हों। फिल्म मेकर एनिमल जैसी क्रिंज फिल्में बनाने की बजाय मीनिंगफुल फिल्में बनाएं। अगर आप एक रेस्टोरेंट या ढाबा चलाते हैं तो लोगों को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाएं ताकि लोगों की सेहत का नुकसान ना हो और उन्हें मजा भी आए और देश का हैप्पीनेस। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर